Hello friends, so in this probability playlist you will able to learn the probability in general manner, and I will cover the theoretical and practically both point of views. Suppose if some theorem come, I will give the application of that so you will understand more. Okay, since I am giving you the applications and examples and experiment, I will give you the feel. So that's why if you are in any field or in finance or in computational bio or in MLAI, if you are in any one of the field, my this playlist must help you, I think. So let's start. Okay, so first in this video I will cover why do we need probability. It will motivate you to learn the probability, and then after we will see the probability experiment. Why probability experiment? Because sometimes we confuse about the experiment. This is which we are talking about, which experiment in probability is science experiment or probability experiment. Both are different things, so I will explain this, then the outcome, event, and some example of probability experiment, and then the uncertainty, probability practice, some क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर why probability of head is equal to 1/2, and this I will cover in next video. Okay, so let's see the some applications of the probability that motivate us. Okay, so for this, okay, so let's see this. Why mobile keyboard auto suggestion? In mobile keyboard, what happen when we typing some letter, it automatically starts suggesting the words. So these things happen because of probability. If you know probability, you also able to do this. I will try to do this application. Okay, I will when we completed the probability, then I will do this. Okay, then AI image generation. In image generation also we use the probability. Here we are using the distribution of the things, goods. Okay, like here model, here the model learn the distribution of the cat. That's why when we give the cat in prompt, it generate the cat distribution, are we able to see the cat. Okay, so this is the AI related. So after completing this playlist, we are able to learn these things. Okay, we will not able to do, but we will able to start learning these types of model after completing this playlist. Okay, so in YouTube recommendation, in YouTube, what happened when we watching some video, it automatically suggests related to that video. So these things happen also because of probability. We use internally, and probability is algorithm. In algorithm we use probability, and that algorithm do this. Okay, and in Flipkart, suppose that there are here 1 2 3 4 5 6 boxes. Okay, so in 6 boxes, how we know? So in these boxes, how we know in this box which goods we need to show you, and in this box which goods I need to show. ये Flipkart want to show you. ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुड्स आपको हमें मतलब सजेस्ट करे फ्लिपकार्ट? तो ये भी इन सब के लिए भी हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का यूज होता है. वी आर यूजिंग द प्रोबेबिलिटी बिहाइंड दैट. ओके, and in stock market prediction also we are using the probability. Okay, what is not probability? Probability क्या नहीं है? Probability is not guessing. हम यहाँ पे कुछ guess नहीं करते हैं. Okay, probability is not a magic. ये भी कोई एक magic नहीं है probability. Okay, ना ही एक formula है.
ये एक लॉजिक है एक तरह से, ठीक है। यहाँ ये लिखा प्रोबेबिलिटी इज ए लॉजिकल वे टू हैंडल द अनसर्टेनिटी। ओके, so before seeing the definition of the what is the probability, before seeing the definition of what is the probability, let's see the some terms that helps the understood this probability. Okay, so let's see what is the probability experiment. Okay, in probability definition or in somewhere come the experiment, our mind thought that okay, we are talking about the experiment that we are doing in that we do in the lab. Okay, but this is not the that experiment. Probability experiment is not the lab experiment that we are doing in our lab. uh, we are talking only those experiment here whose all the possible outcome we know. Okay, where all the possible outcomes are known. हमें सारे पॉसिबल्स आउटकम पता होंगे, हम उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन। जब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में आउटकम क्या क्या आ सकता है? ऑल पॉसिबल्स आउटकम वी नो। बताओ क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ओके, अदर एग्जाम्पल थ्रो अ डाई। ओके, व्हेन वी थ्रो अ डाई, this is also a probability experiment. How? We know all the possible outcome. क्या क्या है possible outcome यहाँ पे? One, either one will come, two will come, or three will come, or four, or five, or six. इसमें से कुछ भी आ सकता है ना? So now we know what is the probability experiment. ठीक है, ये लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है। यहाँ पे हमें आउटकम पता नहीं होते, कभी पता होता है पॉसिबल आउटकम, कभी पता नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंट हमें पता चल गया। इस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम होता है उसी को बोलते हैं आउटकम। ए सिंगल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज आउटकम। ओके, जैसे मान लो एक एग्जांपल और यहां पे लेते हैं प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट का। गेटिंग ए मार्क्स आउट ऑफ 100। ओके, सपोज मैंने कोई एग्जाम दिया, तो मेरे मार्क्स कितने आएंगे 100 में से, इसकी प्रोबेबिलिटी। मतलब ये एक्सपेरिमेंट है कि मैं एक एग्जाम देने जा रहा हूं, तो मेरे मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो मेरे मार्क्स कितने भी आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा आउटकम? पॉसिबल आउटकम क्या है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इसी तरीके से 100। 1 से लेके 100 तक कुछ भी आउटकम आ सकता है। यदि मैं कोई एग्जाम देने जा रहा हूँ, 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो इसमें से कुछ भी आउटकम आ सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आउटकम क्या लिखा है यहाँ पे? ए सिंगल पॉसिबल रिजल्ट। तो जब मैं क्या कहूंगा कि 100 में से मेरे 2 मार्क आए, मैं क्या कहूंगा? मेरे 2 मार्क आए, ये मेरा रिजल्ट है। कभी मैं ये कहूंगा क्या कि मेरा 2 भी आया आउटकम और 3 भी आया? मेरा रिजल्ट 2 भी है और 3 भी है 100 में से? नहीं ना। तो आउटकम इसलिए यहाँ पे ये है हमारा गेटिंग ए मार्क्स आउट ऑफ 100। ये तो एक एग्जांपल हो गया। मतलब जो जो आउटकम है वो सिंगल सिंगल आउटकम को बोलेंगे आउटकम। ठीक है, अब वैसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने आप फील आ रहा है कि आउटकम क्या है। ठीक है, नहीं भी ये डेफिनेशन में लिख के देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, समझ में आ जाता आप लोगों को। ठीक है, आउटकम पे उतना दिमाग नहीं लगाने का। आगे देखते हैं इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो इवेंट क्या है? एन आउटकम और ए सेट ऑफ आउटकम। ओके,
तो अभी तक हमें ये समझ में आ गया आउटकम क्या हुआ, सिंगल पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि सिंगल पॉसिबल रिजल्ट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऑल सिंगल पॉसिबल रिजल्ट आर द ऑल पॉसिबल्स आउटकम, ओके, एंड सिंगल रिजल्ट दैट वी वांट इज एन इवेंट, ओके। सबसे अच्छा डेफिनेशन ये है कि एक एक्सपेरिमेंट ले लो, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट ले लो, इस एक्सपेरिमेंट में मान लो पॉसिबल आउटकम ए है, बी है और सी है, ऐसा मान लो कि ए आ सकता है या बी आ सकता है या सी आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज द सिंगल आउटकम, दिस इज द सिंगल आउटकम, दिस इज द सिंगल आउटकम, ए सिंगल पॉसिबल रिजल्ट, सिंगल पॉसिबल रिजल्ट, सिंगल पॉसिबल रिजल्ट, सिंगल पॉसिबल रिजल्ट, ठीक है। व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट जो हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि ए आए, इज एन इवेंट, ओके। यदि मैं चाहता हूं बी आए तो वो एक इवेंट हो जाएगा, यदि मैं चाहता हूं सी आए तो वो एक इवेंट हो जाएगा, यदि मैं चाहता हूं ए या बी में से कुछ भी आए तो वो एक इवेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझो कि सपोज इफ वी टॉसिंग अ डाई और मैं गेम खेल रहा हूं, तो मेरे लिए इवेंट अब 1 आने से मैं जीत जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा 1 जो है वो मेरे लिए इवेंट है, ठीक है। अब मैं दोबारा गेम खेल रहा हूं, ठीक है, और मैंने एक्सपेरिमेंट किया क्या, थ्रू ए डाई किया। अब जब मैं दोबारा खेल रहा हूं उस टाइम मैं चाह रहा था कि मेरा 3 आ जाए तो मैं जीत जाऊंगा, तो मैं कहूंगा मेरे लिए 3 है यहाँ पे इवेंट, ठीक है। अब मान लो फिर से मैं गेम खेल रहा हूं, अब मैं चाह रहा हूं या तो 4 आ जाए या तो 6 आ जाए, दोनों में मेरा फायदा है, तो मैं कहूंगा मेरा इवेंट जो हो गया वो 4 भी 6, ये मेरा इवेंट हो गया, ठीक है। तो देखो एन आउटकम इज एन इवेंट, ये आउटकम है, ये भी एक इवेंट है, ये आउटकम है, ये इवेंट है, सेट ऑफ आउटकम, set of outcome is event, okay। So now you able to understood what is the experiment, what is the outcome and what is the event. Event is nothing but an outcome or set of outcomes, okay। और वो दूसरे लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं the outcome that we want, okay, either it will be one or more than one, okay, more than one outcome, ओके, दैट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट को और एक एग्जांपल लेते हैं, इवेंट में थोड़ा भी डाउट हो रहा होगा। जैसे मैं बोलूं कि टॉसिंग कॉइन को मैंने टॉस किया, ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट क्या होगा, क्या मैं चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि हेड आए तो मैं जीतूंगा, तो इसका मतलब हेड एक इवेंट है, ओके। अब कुछ दिनों बाद फिर मैं खेलने लगा, टॉस किया कॉइन को, तो उस टाइम मैं चाहता था कि टेल आए, तो इसका मतलब टेल भी एक इवेंट है, ठीक है। अब एक दिन मैं अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा था, उस दिन मैंने बोला कि भैया चाहे हेड आए चाहे टेल आए मैं ही जीतूंगा क्योंकि मैं छोटा हूँ, तो इसका मतलब ये भी इवेंट है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो एक इवेंट ये भी हो गया, हेड टेल कुछ भी आए, ठीक है। अच्छा, इसमें इवेंट और बताओ क्या हो सकता है, कि मैं डाई को मैंने थ्रो किया, एक इवेंट और क्या हो सकता है कि मैं ये चाहता हूँ या तो 4 आ जाए या तो 5 आ जाए या तो 3 आ जाए, ठीक है, या तो 4 आ जाए या तो 5 आ जाए या 3 आ जाए, इन तीनों में से कुछ भी आ जाएगा तो मेरा फायदा होगा, मैं जीतूंगा, तो इसलिए ये भी एक इवेंट है, ठीक है, ये भी एक इवेंट है, इन चारों में से कुछ भी आ जाए मेरा फायदा हो रहा है तो इवेंट है, ठीक है। इसके कितने पॉसिबल्स इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है एक इवेंट, 2 3 4 5 6, 1 2 1 3, ठीक है, 1 4, ये सारे इवेंट हैं। किसी गेम में 1 आने से मेरा फायदा हो रहा है, किसी गेम में 1 4 आने से फायदा हो रहा है, ठीक है, किसी गेम में 1 5 आने से फायदा हो रहा है, किसी गेम में 1 6 आने से फायदा हो रहा है, किसी गेम में 1 2 3 आने से फायदा हो रहा है, तो ये सारे के सारे इवेंट हैं, ओके। तो इस तरीके से ये इवेंट होते हैं, ठीक है। नाउ वी नो द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, आउटकम एंड इवेंट।
ओके, सो इसको आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी जानने से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, ये पता हो गया। अभी ये पता होना चाहिए कि सर्टेनिटी क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होता है। तो इन दोनों को भी हमें पता होना चाहिए। तो सर्टेनिटी मीन्स सपोज वी आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें पता है कि एक्चुअल में क्या आने वाला है, तो उसको बोलते हैं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब हमें पहले से पता है। अनसर्टेनिटी मतलब हमें पहले से नहीं पता कि एक्चुअल आउटकम क्या आएगा। सिंपल लैंग्वेज में आप ये याद कर सकते हो, ठीक है। मोर एक्यूरेट ये होगा, बट इन सिंपली आप ये कह सकते हो सर्टेनिटी मतलब वी नो व्हाट इज द आउटपुट बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट इफ वी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट, ओके। एंड इन अनसर्टेनिटी वी डू नॉट नो व्हाट विल बी द एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। और वी कैन नॉट एबल टू टेल अबाउट द we cannot be predicted with the, है ना। देखो, अनसर्टेनिटी इज अ सिचुएशन इन विच द एक्चुअल आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी बिफोर इट अकर्स। बिफोर इट अकर्स मतलब बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, ओके। सो यहां तक समझ में आ गया सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी क्या है। अब यहाँ पे इवेंट भी हमें समझ में आ गया। एन इवेंट इज एन आउटपुट और ए सेट ऑफ आउटपुट, ओके। टॉसिंग ए कॉइन, ये सब समझ में आ गया। So now let's see the what is probability, okay. So now we will able to understood this definition. Probability is a numerical measure of uncertainty that tell us how likely an event occurs. How likely means chance, okay. How likely means chance, okay, means ये बताता है कि वो इवेंट होने का कितना चांस है, ठीक है। जहां पे अनसर्टेनिटी है, जिस एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी है, उस एक्सपेरिमेंट में ये हमें बताता है वो इवेंट होने का कितना चांस है। जैसे कॉइन को हमने टॉस किया, ठीक है। कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सपोज करो मैंने इवेंट बोला हेड, ठीक है, हेड आने से मैं जीतूंगा। तो ये क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा कितना चांस है ये होने का, मतलब हाउ लाइकली दिस इवेंट विल अकर्स, ठीक है। तो ये आता है इक्वल टू 1/2। आई विल टेल यू हाउ दिस विल कम 1/2, ओके। ये एग्जाम्पल 1 हुआ। सपोज एग्जाम्पल 2 में हमने एक डाई को रोल किया, ओके। 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमने इस डाई को रोल किया, तो डाई को रोल किया तो यहाँ पे पॉसिबल्स आउटकम हो गए 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पे मैंने बोला कि मेरा जो इवेंट है वो है 4, ओके। तो प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिकल मेजर। यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है। जब मैं डाई को रोल करूंगा तो क्या एक्चुअली में आने वाला ये नहीं पता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे अनसर्टेनिटी। जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां पे ये बताता है कि जो मेरा इवेंट है वो होने का हाउ लाइकली कितना चांस है। जैसे मैं बोलूं इवेंट मेरा है 4, तो ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 होने का यहाँ पे 1/6 आता है, मतलब 1/6 चांस है। इतना चांस है। इसको डेसिमल में परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं 50% चांस है ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी। वैसे इसको भी आप कन्वर्ट कर लोगे मल्टीप्लाई बाय 100 से करके कि इतना परसेंट चांस है 4 आने का, ठीक है। वैसे यदि मैं बोलूं इस एग्जांपल में कि इवेंट जो है मेरा 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालेंगे, दैट इज 1/6। इसका मतलब 1/6 इज अ चांस, इज हाउ लाइकली, मतलब 1/6 is likely to occur this event, okay. I think now you know able to connect these things with this definition, okay. And this is the simple definition. You can also use this when someone asks you what is the probability assign a number between 0 and 1 to represent the chance of an event, है ना, chance of an event. This is a chance of an event. इस event का होने का chance बता रहा है, ठीक है। यदि मान लो एक इवेंट और ले लेते हैं,
यदि मेरा इवेंट है, मैं चाह रहा हूं कि या तो 3 आ जाए या तो 6 आ जाए, ठीक है। तो 3 आ जाए या फिर 6 आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी होता है 2/6 मीन्स 1/3 मीन्स 33%, है ना। ओके, एक इवेंट ये हो गया 4 आने का, 5 आने का, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट। ओके, दिस आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। आई थिंक आप लोग अभी कर लोगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं साथ में, है ना। तो देर आर टू एक्सपेरिमेंट, वी नीड टू टेल विच वन इज प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। सो टॉसिंग ए कॉइन, तो जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या हमें ऑल पॉसिबल्स आउटकम पता है? यदि हमें ऑल पॉसिबल्स आउटकम पता है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है। तो टॉसिंग ए कॉइन में हमें ऑल पॉसिबल आउटकम पता है, इसलिए ये क्या है? प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है। ठीक, ऑल पॉसिबल्स आउटकम पता है हमें, हेड या टेल आएगा, कोई भी 3 इवेंट यहाँ पे लिख लो। लिखेंगे कैसे? क्या सोच के कि यदि मैं जब पहले खेल रहा हूँ गेम, तो एक बार या तो मैं हेड को अपना इवेंट मान सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं टेल को मान सकता हूँ, और मैं बड़े भाई के साथ खेलूंगा तो मैं कह दूंगा नहीं, मेरा दोनों ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम बट एक्सपेरिमेंट इज डिफरेंट। सो हेयर इज रोलिंग अ डाई वंस। तो जब हम डाई को रोल करेंगे तो क्या यहाँ पे ऑल पॉसिबल्स आउटकम हमें पता है? यस, वी नो ऑल द पॉसिबल आउटकम। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। ऑल पॉसिबल्स आउटकम हमें यहाँ पे पता है, क्या क्या आउटकम आ सकता है ना, हमें पता है। या तो 1 आ सकता है, 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, ठीक है। कोई भी 3 इवेंट लिख लो। यहाँ पे मैंने बताया इतने सारे इवेंट, है ना। या तो ये इवेंट होगा या ये या ये सारे क्या इवेंट है, ठीक है। ये एक या तो ये इवेंट या ये इवेंट ले लो या ये इवेंट ले लो, ठीक है। धीरे धीरे और मैच्योर होते जाओगे जब आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। ओके, सो कोई भी 3 इवेंट वहां से लिख लेना, बहुत सारे हैं। सो टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, तो हम 2 कॉइन को जब एक साथ टॉस करेंगे तो क्या पॉसिबल आउटकम हमें पता है? यस, पता है। क्या? या तो दोनों कॉइन पे हेड हेड आ जाए, या फिर हेड टेल आ जाए, या फिर टेल हेड आ जाए, या फिर हेड टेल या फिर टेल टेल आ जाए, ठीक है। कोई भी 3 इवेंट अपने आप से अब लिखना, ये आप लोग का टास्क है, और जिसे आ जाए वो अपना कमेंट में आंसर दे देना। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ठीक है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 1/2 क्यों होता है, अब हमें ये देखना है। तो ये इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है। इसे 3 तरीके से मैं इंटरप्रेट करूंगा। एक है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, एक है फ्रीक्वेंटिस्ट प्रोबेबिलिटी, और एक है बेसियन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, जो हम क्लास 10th और 11th में हम जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ते हैं, तो वो जो है हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंटिस्टिक प्रोबेबिलिटी है, ये एक एक्सपेरिमेंट बेस है। इसमें हमें एक्सपेरिमेंट बेस मतलब इसमें हमें एक्सपेरिमेंट करना, मतलब डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और बेसियन प्रोबेबिलिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमएल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। जो लोग डेटा साइंस में आगे करियर देख रहे हैं उनके लिए बेसियन प्रोबेबिलिटी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसमें कुछ बिलीव करके करते हैं, ठीक। सो नाउ वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।